یہ کہانی لاہور ایک نجی علاقے میں رہنے والی ایک مظلوم لڑکی کی ہے جس پر پیدائش سے لے کر شاید آج تک ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ تو لاہور کے ایک علاقے میں سعید نامی شخص رہتا تھا جس کے پاس سب کچھ تھا لیکن اولاد نہیں تھی، جبکہ اس سلسلے میں سعید اور اس کی بیوی سمینا نے اپنے ہر جگہ علاج وغیرہ کروایا لیکن اس مسئلے کا کوئی حل نہ نکل سکا۔ پھر کچھ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور پھر ایک دن سعید اپنے آفس سے گھر آیا اور اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے سر کو دباتے ہوئے سمینا سے کہا، بیگم ایک کپ چائے ہی بنا دو، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ سمینا نے کہا، آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سمینا کچن کی طرف جانے لگی تو سعید نے اسے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، سنو۔ سمینا نے پلٹ کر سعید کی طرف دیکھا تو سعید نے کہا، ساتھ میں سر درد کی گولی بھی لیتی ہے نا؟ سمینا نے کہا، جی میں ابھی لاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سمینا وہاں سے چلی گئی اور سعید اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پھر سعید نے اپنے جوتے وغیرہ اتارے اور بیڈ پر لیٹ کر پھر سے اپنے ہاتھ سے اپنے سر کو دبانے لگا۔ پھر کچھ دیر میں سمینا ایک ٹرے میں پانی کا گلاس، چائے اور سر درد کی گولی لے کر آ گئی اور سعید اسے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر سمینا نے ٹرے ایک سائیڈ پر رکھی اور اس میں سے سر درد کی گولی اور پانی کا گلاس سعید کو دیتے ہوئے کہا، یہ لیں، پہلے یہ کھا لیں اور اس کے بعد چائے پی لیں، انشاءاللہ درد ٹھیک ہو جائے گا۔ سعید جلدی سے پانی سے سر درد گولی کھائی اور بیٹھ کر چائے پینے لگا اور اس دوران سمینا بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ سعید خاموشی سے چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کسی سوچ میں گم تھا۔ تبھی سمینا نے سعید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ آج آپ کچھ پریشان سے دکھائی دے رہے ہیں۔ سعید نے چونک کر سمینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ کیا کہا تم نے؟ سمینا نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کیا سوچ رہے ہیں جو آپ نے میری بات ہی نہیں سنی؟ سعید نے کہا، کچھ نہیں، وہ دراصل میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے ہر جگہ سے اپنا علاج کروایا اور ہر جگہ پر جا کر دوا کی لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ سمینا نے کہا، اب تو مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگنے لگا ہے، خیر اب ہم سوائے دعا کرنے کے اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ تبھی سعید نے کہا، آج مجھے بہت سالوں بعد میرا ایک دوست ملا تھا اور جانتی ہو اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ اس کی شادی کو بھی 15 سال ہو گئے تھے لیکن اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، لیکن پھر اس نے دوسری شادی کر لی اور آج وہ بتا رہا تھا کہ اب اس کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ سعید کی یہ بات سن کر سمینا سرزدہ سی ہو گئی اور بولی، تو آپ بھی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ سعید نے سمینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے نہیں نہیں، میں بھلا ایسے کیوں کروں گا، میں تو بس تمہیں ایسے ہی بتا رہا تھا۔ سمینا نے کہا، لیکن آپ اس بات کی آڑ میں جو بات مجھے سمجھانا چاہتے تھے وہ میں سمجھ گئی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہیں، بس کہنے سے قاصر ہیں، اس وجہ سے آپ نہ کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے سمینا کو آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سعید نے سمینا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو کہنے لگا، ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ میں سچ میں کہہ رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اگر واقعی میں ایسی کوئی بات ہوتی تو میں اس بارے میں تم سے ضرور مشورہ کرتا، اور دیکھو نا اب بھلا میری عمر ہے شادی کرنے کی۔ سمینا نے کہا، کیا ہوا ہے آپ کی عمر کو؟ آپ اچھے خاصے جوان تو ہیں، بوڑھی تو میں ہو رہی ہوں جو آپ کو اولاد کی خوشی نہیں دے پا رہی۔ سعید نے چائے کا کپ سائیڈ پر رکھا اور سمینا کے دوپٹے کو پکڑ کر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، ارے کون کہتا ہے تم بوڑھی ہو گئی ہو، تم تو اب بھی میرے سامنے 24 سال کی لگتی ہو۔ اور یہ کہتے ہوئے سعید مسکرانے لگا۔ پھر سمینا نے بھی مسکرا کر کہا، اچھا اب زیادہ مکھن مت لگائیں، میں جانتی ہوں آپ میرا دل رکھنے کے لیے یہ سب کہہ رہے ہیں۔ سعید نے کہا، ارے یار میں واقعی میں سچ کہہ رہا ہوں۔ پھر سعید نے سمینا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تمہیں نہیں یقین نا تو چلو میرے ساتھ، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ ہم دونوں میں سے بوڑھا کون دکھتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سعید سمینا کو ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے لے گیا اور پھر آئینے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب شیشے میں دیکھ کر بتاؤ ہم دونوں میں سے جوان کون لگ رہا ہے؟ سمینا نے ہنستے ہوئے کہا، آپ ہی لگ رہے ہیں۔ سمینا کی یہ بات سن کر سعید نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے لگتا ہے تمہاری نظر چیک کروانی پڑے گی، بھلا شیشے میں دیکھو، میں تمہیں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں ایک 48 سال کا بابا جی دکھائی نہیں دے رہا کیا؟ سمینا نے کہا، نہیں جی، آپ تو ابھی بھی ہیرو لگتے ہیں۔ سمینا کی یہ بات سن کر سعید نے کہا، ہاں اب مجھے واقعی میں لگنے لگا ہے تم بوڑھی ہو رہی ہو، تم ایک بابے کو ہیرو کہہ رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے سعید زور زور سے ہنسنے لگا۔ تبھی سمینا نے کہا، ارے ابھی تو آپ کے سر میں بہت درد ہو رہا تھا، اب وہ درد کہاں گیا؟ سعید نے کہا، یار میں بوڑھا تھوڑی نہ ہوں جو ہلکے سے سر درد کو لے کر بیٹھ جاؤں گا، میں تو ہیرو ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سعید واپس بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ اتنے میں سمینا نے کہا، چلیں آپ کچھ دیر سو جائیں اور تب تک میں کھانا بنا لیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سمینا نے کمرے کی لائٹ آف کی اور باہر چلے گئی اور کچھ ہی دیر میں سعید کی
आंख लग गई तो सईद ने एक ख्वाब देखा जिसमें सईद किसी खूबसूरत से बाग में खड़ा हुआ है और एक खूबसूरत सी बच्ची को गोद में लिए इसे खिला रहा है कि अचानक इस बच्ची के चेहरे से एक बहुत ही तेज किस्म की रोशनी निकली और देखते ही देखते दूर तक फैल गई। अभी सईद इसको देख ही रहा होता है कि अचानक कहीं से एक रोशन से चेहरे वाली औरत आती है। सईद इसके चेहरे पर भी इतनी रोशनी होती है कि सईद को इसकी शक्ल पूरी तरह से नजर नहीं आ रही थी। तभी वो औरत सईद को हाथ से वो बच्ची को पकड़ कर ले जाने लगती है तो सईद इससे कहता है, कौन हो तुम और ये मेरी बेटी को कहाँ ले जा रही हो? रुको, कहाँ ले जा रही हो मेरी बेटी को? लेकिन वो औरत सईद की किसी बात का कोई जवाब नहीं देती और सईद इसके पीछे भागने लगता है तो अचानक से गिर जाता है। तभी घबरा कर सईद की आंख खुल गई और घबरा कर इधर उधर देखते हुए उठा और बोला, मेरी बच्ची मुझे वापस दो। फिर अचानक ने गौर किया तो वो अपने कमरे में है और सईद को एहसास हुआ कि ये तो बस एक ख्वाब ही था। ये सोचते हुए सईद ने एक लंबी सांस ली और उठा कमरे से बाहर चला गया। तभी समीना ने सईद की तरफ देखते हुए कहा, आप उठ गए, चलें, अच्छा है, मैं आपको अभी आकर जगाने ही वाली थी, खाना तैयार है। सईद ने समीना से कहा, नहीं, मेरा खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा, तुम खा लो। समीना ने सईद की तरफ हैरत से देखते हुए कहा, क्या हुआ आपको? आप कुछ अफसर से लग रहे हैं। सईद ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मूड कुछ अजीब सा हो गया है। समीना ने कहा, अरे आप तो अच्छे भले सो गए थे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपका मूड खराब हो गया? सईद ने कहा, नहीं, बस मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा था, इसकी वजह से अचानक मेरा दिल उदास हो गया था। समीना ने हैरत से पूछा, कैसा ख्वाब? फिर सईद ने समीना को अपने ख्वाब हुए वाक़े के बारे में बताया तो समीना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये तो कोई अच्छा ख्वाब ही लगता है, इसका मतलब है कि आपके नसीब में औलाद है, इसीलिए तो इसे आपने अपने ख्वाब में देखा। समीना की ये बात सुनकर सईद ने खुशी से समीना की तरफ देखते हुए कहा, क्या सच में ऐसा है? समीना ने सईद की तरफ मुस्कुरा कर देखा और अपनी आंखें एक पल के लिए बंद करके हाँ में सर हिलाया तो सईद ने समीना के हाथ को पकड़कर चूमते हुए कहा, शुक्रिया समीना, आज तुमने मुझे एक नई उम्मीद दे दी है। ऐसा लगता है कि शायद अब हमारी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। समीना ने कहा, हाँ हाँ, जरूर आएंगी। सईद ने कहा, तो फिर ठीक है, चलो आज हम रात का खाना बाहर जाकर खाएंगे। समीना ने हंसते हुए कहा, अरे तो जो मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया है इसका क्या करेंगे? ये कौन खाएगा? सईद ने कहा, इसे फ्रीज कर दो या मोहल्ले में किसी को दे दो ना। आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरा दिल चाह रहा है आज हम कहीं बाहर जाकर खाना खाएं। अब देर मत करो, जल्दी चलो, अचानक मुझे बहुत तेज भूख लग गई है। समीना ने कहा, अच्छा बाबा, थोड़ा रुकिए तो मैं ये खाना मोहल्ले में किसी को दे तो दूं, फिर चलते हैं। सईद ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ा जल्दी करो, तहरीर देमी वाली। समीना ने जल्दी से सारा खाना एक बर्तन में डालकर मोहल्ले में किसी को दे दिया और फिर सईद के साथ बाहर खाना खाने चली गई। सईद खाना खाते हुए लोगों के बच्चों को हसरत से देखते हुए खाना खा रहा था। इस दौरान समीना ने सईद ने देखा तो समीना एक बार फिर से समीना की आंख भर आई थी। तभी की तरफ अचानक सईद की नजर समीना पर पड़ी तो सईद ने समीना से कहा, अरे अब तुम्हें क्या हो गया? समीना ने बात को घुमाते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कोई ख्याल आ गया था। कभी मैं भी इन बच्चों की तरह अपने अम्मी अब्बू के साथ ऐसे खाना खाने जाया करती थी और वापस जाते हुए बहुत से खिलौने लेकर घर जाती थी। सईद ने मुस्कुराकर समीना के हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे तुम उदास क्यों होती हो? जब हमारी औलाद होगी तो हम यहाँ खाना खाने आया करेंगे और वापसी पर तुम इसके लिए खिलौने लेकर जाया करना, ठीक है? समीना ने आंखों से आंसू साफ करते हुए हाँ में सर हिलाया और फिर खाना खाने लगी। फिर सईद और समीना ने खाना खत्म किया और दोनों गाड़ी में बैठकर घर जा रहे थे। इस दौरान दोनों बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। सईद चुपचाप गाड़ी चला रहा था और समीना सीट पर टेक लगाकर दरवाजे के शीशे से बाहर की तरफ देखती हुई गहरी सोचों में गुम थी। तभी सईद की नजर समीना पर पड़ी तो सईद ने समीना से कहा, क्या हुआ, तुम अभी तक उदास हो? समीना ने सईद की तरफ देखा तो इसकी आंखों में फिर से आंसू थे। सईद ने कहा, अरे तुम अब तक रो रही हो, देखो अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो मेरी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और जो आज तुमने मुझे नई उम्मीद दी है वो टूट जाएगी। समीना ने जल्दी से गाड़ी के डैशबोर्ड पर पड़े हुए टिश्यूज के डब्बे से एक टिश्यू पेपर लिया और इससे अपने आंसू साफ करते हुए कहा, नहीं बस ऐसे ही, मैं ठीक हूँ, अब नहीं रोती, देखो मैं खुश हूँ। ये कहते हुए समीना सईद की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और फिर सईद भी मुस्कुराते हुए ड्राइविंग करता रहा और दोनों घर पहुँच गए। फिर दोनों ने कपड़े वगैरह चेंज किए और सोने चले गए। लेकिन इस रात सईद सो गया पर समीना इसके पास
लेटी हुई गहरी सोचों में पड़ी रही और सोचते सोचते इसको भी नींद आ गई। अगले दिन सुबह समीना ने नाश्ता टेबल पर लगाया और सईद ऑफिस के लिए तैयार होकर नाश्ते के टेबल पर आया तो कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराता हुआ किसी सोच में पड़ गया। तभी समीना ने सईद को देखते हुए कहा, क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। सईद ने समीना की तरफ देखते हुए कहा, समीना पता है गुज़श्ता रात फिर से मुझे वही ख्वाब आया जो कि मैंने गुज़श्ता शाम के वक्त देखा था। वही बच्ची, वही औरत और वही सब कुछ हुआ। ये कोई मामूली बात नहीं लग रही। समीना ने कहा, मैं जानती हूँ इस ख्वाब का जरूर आपकी जिंदगी से कोई बहुत गहरा तल्लुक है, इसी वजह से ये ख्वाब बार बार आपको दिखाई दे रहा है। सईद ने कहा, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। ये कहते हुए सईद ने जल्दी से नाश्ता किया और हस्बे मामूल समीना का माथा चूमकर इससे बाय बोलकर ऑफिस चला गया। इस दौरान समीना अपना नाश्ता सामने रखकर फिर से कुछ सोचने लगी और फिर कुछ देर के बाद नाश्ता करके अपने कमरे में जाकर लेट गई और अचानक समीना की आंख लग गई तो समीना को भी एक ख्वाब आया जिसमें समीना ने देखा कि सईद किसी जवान लड़की के साथ अपने कमरे में हुआ है और सईद की गोद में एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन इस जवान लड़की और इस बच्ची के चेहरे पर इतनी रोशनी है कि समीना इस बच्ची और इस जवान लड़की की शक्ल को अच्छे से देख नहीं पा रही। तभी समीना ने सईद को आवाज देते हुए कहा, सईद ये लड़की कौन है और ये तुम्हारी गोद में किसकी बच्ची है। जिस पर सईद मुस्कुराते हुए समीना से कहता है, अरे समीना तुम आओ, यहाँ आओ, देखो ये लड़की मेरी नई शरीक हयात है और ये मेरी गोद में मेरी बच्ची है, जरा देखो तो इसे कितनी प्यारी है, आओ आओ देखो इसे। जब समीना सईद की ये बात सुनती है तो अचानक से समीना बोलती है, नहीं ये नहीं हो सकता सईद, ये नहीं हो सकता, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ये कहते हुए अचानक समीना की आंख खुल गई और समीना उठकर तेज तेज सांस लेती हुई इधर उधर देखने लगी और फिर अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़कर बोली, तौबा ये कैसा ख्वाब था। ये कहते हुए समीना बेड से उठी और मोबाइल पकड़कर इसमें टाइम देखा तो दोपहर के 3 बजने वाले थे। समीना ने कहा, कमाल है, आज तो मैं काफी देर तक सोई ही रही और मुझे पता भी नहीं चला और अब तो सईद भी आने वाले होंगे। ये कहते हुए समीना कमरे से बाहर चली गई और अपने काम काज में मसरूफ हो गई। फिर कुछ देर के बाद टीवी लॉन्च में आकर बैठ गई और फिर से किसी लंबी सोच में खो गई। तभी इतने में सईद भी काम से वापस आ गया और हस्बे मामूल सामान वगैरह रखकर समीना के पास आकर बैठ गया। समीना ने कहा, आज मुझे आपसे कोई बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन पहले आप मुझे यकीन दिलाएंगे जैसे मैं आपसे बोलूंगी आप वैसे ही करेंगे। सईद ने हैरत से समीना की तरफ देखते हुए कहा, अरे पहले बताओ तो आखिर बात क्या है। समीना ने कहा, पहले आप वादा करें कि जो मैं आपसे कहूंगी आप मेरी बात मानेंगे। सईद ने अकाता कर इधर उधर देखा और बोला, अच्छा बाबा, वादा करता हूँ तुम्हारी बात मानूंगा, अब बताओ भी क्या बात है। समीना ने फिर सईद को अपने ख्वाब के बारे में बताया तो सईद हैरानी से समीना की तरफ देखने लगा और बोला, क्या वाकई में तुमने ये सब देखा। समीना ने कहा, जी, और मैं सच कह रही हूँ। सईद ने कहा, पहले मुझे दोबारा वही ख्वाब आया और अब तुम्हें भी वही ख्वाब आया, आखिर इस ख्वाब का मतलब क्या है। समीना ने मुस्कुराते हुए कहा, इस ख्वाब में जो औरत है वो तुम्हारी दूसरी बीवी है और वो जो बच्ची तुम्हारी गोद में थी वो तुम्हारी अपनी बच्ची थी जो कि तुम्हारी दूसरी बीवी से हुई थी। तो इसका साफ मतलब है कि अगर आपको औलाद चाहिए तो आपको दूसरी शादी करनी होगी। समीना की ये बात सुनकर सईद ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये तुम क्या कह रही हो। समीना ने कहा, मैं सही कह रही हूँ, आपको दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी अगर आपको औलाद चाहिए। सईद उठकर अपने हाथों को आपस में अजीब तरीके से मलते हुए इधर उधर टहलने लगा। इस दौरान समीना ने कहा, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं आपको दूसरी शादी की इजाजत दे रही हूँ और देखो ये ख्वाब भी हमें इसी वजह से बार बार आ रहा है। ये सुनते ही सईद अचानक रुक गया और समीना की तरफ देखते हुए बोला, देखो मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने से भी हमें कोई फायदा होगा और अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ तो इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरी औरत से मुझे औलाद मिल जाएगी और वैसे भी मेरी उम्र अब 50 के करीब है, तो ऐसे में भला कौन पागल लड़की शादी करेगी मुझसे। समीना ने कहा, आप मर्द हैं और मर्द कभी बूढ़े नहीं होते और फिर आपके पास माल व दौलत भी है और आजकल के दौर में तो लोग माल व दौलत देखकर 70 साल के बूढ़े से भी जवान लड़की को ब्याह देते हैं, लेकिन आप तो इसके मुकाबले में अभी भी बहुत जवान हैं, अब आप ज्यादा सोचे मत, जो मैंने कहा इसके बारे में सोचिए। सईद ने एक बार समीना की तरफ देखा और फिर बिना बोले ना में अपना सर हिलाते हुए बोला, भाई मुझसे तो नहीं होगा, मैं बूढ़ा हूँ, सेट कैसे एक जवान लड़की से, नहीं नहीं बहुत मुश्किल काम है ये और लोग क्या कहेंगे। समीना ने कहा, आपको लोगों
लोगों की परवाह है पर अपनी और मेरी नहीं है, और लोगों से भला हमें क्या लेना देना, हमने अपनी खुशी देखनी है। और आप ही ने तो बताया था कि आपके दोस्त ने भी तो दूसरी शादी की थी और इसके यहाँ भी औलाद हो गई थी, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मेरा यही कहना है कि लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप बस एक बार सोच लें। सईद ने कहा, अच्छा ठीक है, देखते हैं। समीना ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आपकी औलाद की ख्वाहिश पूरी हो जाए और मैं भी तो आपके पास रहूंगी ना, इसलिए देर मत कीजिएगा। सईद ने कहा, अच्छा बाबा ठीक है, मैं कल ही किसी से बात करके देखूंगा। ये कहते हुए सईद फ्रेश होने चला गया और समीना खाना वगैरह का इंतजाम करने लगी। फिर दोनों ने खाना वगैरह खाया और हस्बे मामूल अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। तहरीर देने वाली फिर रात के वक्त सईद टीवी लॉन्च में बैठा हुआ टीवी देख रहा था कि अचानक बाहर वाले दरवाजे पर बेल हुई। सईद ने कमरे में लगी हुई घड़ी पर नजर डाली तो इसमें रात के 10 बजने वाले थे। सईद ने खुद से कहा, इस वक्त फोन आ गया, और ये कहते हुए सईद दरवाजे खोलने चला गया। और जब सईद ने बाहर जाकर दरवाजा खोला तो बाहर कोई मौजूद नहीं था। सईद हैरानी से इधर उधर देखने लगा और फिर दरवाजा बंद करके वापस टीवी लॉन्च की तरफ जाने लगा तो अचानक सईद की नजर घर के लॉन में पड़े हुए एक बेंच पर पड़ी तो सईद ने देखा कि वही ख्वाब वाली लड़की गोद एक बच्ची को उठाए हुए बेंच पर बैठी हुई है। सईद ने आस्ता आस्ता से पहले अपने चारों तरफ देखा और फिर इस लड़की को देखते हुए इसकी तरफ बढ़ने लगा, और जैसे ही सईद इस लड़की के पास गया तो इस लड़की ने सईद की तरफ देखा, लेकिन इस लड़की के चेहरे की तेज रोशनी की वजह से सईद इसकी शक्ल नहीं देख सका, लेकिन इसके चेहरे के अलावा वो सईद के पूरे जिस्म को बासानी देख रहा था। इसके हाथ पांव गर्दन वगैरह भी बहुत खूबसूरत थे, और इसी तरह इस लड़की की गोद में जो बच्ची थी इसके भी चेहरे के सिवा सईद इसके पूरे जिस्म को अच्छे से देख रहा था। तभी सईद ने इस लड़की से पूछा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें अपने ख्वाब में भी देखा है। लेकिन इस लड़की ने सईद की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस वो अपनी जगह पर बैठी हुई सईद की तरफ देखती रही। इतने में समीना ने बाहर आकर सईद को आवाज दी तो सईद ने इस लड़की की तरफ हाथ से इशारा किया और समीना की तरफ देखते हुए कहा, ये देखो यहाँ भी आ गई है। अभी सईद ये बात कर ही रहा था कि समीना ने सईद की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या हुआ, कौन आ गई? समीना की ये बात सुनकर जैसे ही सईद ने वापस इस लड़की की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सईद हैरत से इधर उधर देखने लगा। समीना ने सईद के पास आकर कहा, क्या हुआ आपको, किसको ढूंढ रहे हैं? सईद ने सब जगह देखने के बाद समीना की तरफ देखते हुए कहा, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? समीना ने कहा, आर हुआ क्या है, आप इतने हैरान क्यों हैं? सईद ने बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो ख्वाब वाली लड़की अभी यहाँ बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही तुम आई तो वो कहीं गायब हो गई। समीना ने पर अंदाज में इधर उधर देखा और सईद के हाथ को पकड़कर बोली, चले आप अंदर चले, रात बहुत है, कहीं कोई और चीज ही ना हो जिसे आपने देखा होगा। सईद ने कहा, अरे नहीं, मैं तो इस लड़की को देखा है। समीना ने कहा, अच्छा ठीक है, चलें फिर अंदर चलें। ये कहते हुए समीना सईद को अंदर ले गई और फिर से सईद से कहने लगी, आपको कुछ समझ आया? अब आपको जागते हुए भी इसका ख्याल आने लगा है, इसका मतलब है अब आपको इससे शादी कर लेनी चाहिए, इसलिए वो बार बार आपके सामने आने लगी है। सईद ने कहा, पर यार मुझे कैसे पता चलेगा कि जिससे मैं शादी कर रहा हूँ वो ही लड़की है जिसको मैं ख्वाब में देखता हूँ, जबकि मैंने आज तक इसकी शक्ल भी नहीं देखी, क्यों ना कि इसके चेहरे पर बहुत ज्यादा रोशनी होती है, इस वजह से इसका चेहरा दिखाई नहीं देता, बस बाकी जिस्म देखकर अंदाजा होता है कि वो जो भी है बहुत खूबसूरत और जवान है। समीना ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको इसका चेहरा इसलिए दिखाई नहीं दे रहा क्यों ना कि वो अभी आपके निकाह में नहीं है, लेकिन वो कोई भी हो सकती है, क्यों ना कि इस वक्त आपको सिर्फ इसकी परछाई ही दिखाई दे रही है, और वो आपकी जिंदगी में आने वाली नई शरीक हयात की परछाई है, और जब वो आपके निकाह में आ जाएगी तो आपकी जिंदगी को भी औलाद की रोशनी से रोशन कर देगी। मुझे तो आपके ख्वाब और ख्याल से यही लग रहा है। इस दौरान सईद अपने सर को पकड़कर समीना की बातों में खोया हुआ था और इस लड़की के बारे में सोच रहा। तभी समीना ने कहा, अब आप ज्यादा सोचे मत और चले, आपके सोने का वक्त हो चुका है। सईद ने एक गहरी सांस ली और उठकर अपने कमरे में जाकर लेट गया, और जब इस रात सईद सोया तो फिर से इसको वही लड़की दिखाई दी, और इस बार वो लड़की लाहौर के एक निजी इलाके में एक घर के बाहर खड़ी हुई थी, और सईद ने इसको पूछा, है तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? तो इस लड़की ने बिना बोले एक घर की तरफ इशारा किया और अपनी बेटी को गोद में लिए हुए इस घर में चली गई। और जब सईद इसके पीछे पीछे चलता हुआ इस घर में जाता है तो इस घर में दाखिल होते ही सईद की आंखों में अंधेरा छा जाता है और इस घर में कोई दिखाई नहीं देता, और सईद अंधेरे में इसको कहता है, कहाँ हो तुम, हेलो कहाँ हो तुम? कि अचानक सईद की आंख खुल गई
और वो घबरा कर उठ गया और फिर इसके कमरे की लाइट जलाई और कमरे में टहलने लगा। इतने में समीना की आंख भी खुल गई और समीना ने आंखें मलते हुए सईद की तरफ देखा तो समीना ने सईद को कहा, क्या हुआ, खैरियत है? आप इस वक्त उठकर टहल रहे हैं? सईद ने चौंक कर समीना की तरफ देखा और इसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, इसका पता चल गया है? हाँ, पता चल गया है। वो कहाँ रहती है? समीना ने हैरत से सईद की तरफ देखते हुए कहा, आप किसकी बात कर रहे हैं? किसका पता चल गया है? सईद समीना के पास आकर बैठ गया और समीना के हाथ पकड़कर बोला, वो लड़की मुझे ख्वाब में दिखाई देती है, इसके घर का पता चल गया है, वो जहाँ रहती है, इस जगह को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। समीना ने हैरत से पूछा, क्या आपको किसने बताया कि वो वहाँ रहती है? सईद ने कहा, अभी कुछ देर पहले मैंने ख्वाब देखा था तो वो लड़की जिस जगह खड़ी थी, इस इलाके को मैं अच्छे से जानता हूँ और जब मैंने इसे पूछा कि मैं तुम्हें कहाँ तलाश करूँ तो वो वहीं पर वो एक घर में चली गई थी और मैं भी इसके पीछे इस घर में गया तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, क्यों ना कि हर तरफ अंधेरा था। मैं अभी इस आवाज दे ही रहा था कि अचानक मेरी आंख खुल गई और यही सोचते हुए मैं कमरे में टहल रहा था। समीना ने कहा, फिर तो ये बहुत खुशी की बात है, इसका मतलब है कि आप इसके बहुत करीब पहुंच गए हैं। सईद ने कहा, हाँ शायद, लेकिन अब मुझे ये पता नहीं है कि जब मैं वहां जाऊंगा तो वो मुझे वहां मिलेगी, मैं यहाँ नहीं। समीना ने कहा, आप वहां जाएं तो सही, हो सकता है वो वहीं ही रहती हो और अगर वो वहां ना रहती हो तो वो इस घर की तरफ इशारा ना करती और आपके सामने इस घर में ना जाती, कहीं और चले जाती। सईद ने कहा, हाँ ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा, लेकिन एक बात है, अगर वो वहां मिल भी जाती है तो मैं इसे कहूंगा क्या या इसके घर वालों से कैसे बात करूंगा? समीना ने कहा, पहले आप वहां जाएं तो बाकी चीजों के बारे में भी सोच लेंगे। सईद ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, मैं पहले वहां जाकर देखूंगा। ये कहते हुए सईद दोबारा लेट गया और फिर सो गया। अगले दिन सईद उठा और जल्दी से तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर गया तो समीना वहां पहले से मौजूद थी और समीना ने सईद की तरफ देखते हुए कहा, आपका नाश्ता बिल्कुल तैयार है, जारी है।